फ्रूट टुडेज टॉपिक वी स्टार्ट फ्रॉम द फ्रूट्स, जो हमने कल छोड़ा था उसी को हम कहेंगे. Mature and ripened ovary developed as fruit after fertilization. After fertilization. There is a need to understand of one term. If fruits originated or developed without any fertilization, such kind of the fruits called as specifically, this is star point, parthenocarp. Fruit formation without fertilization. Example, banana. Right. Types of fruits. We can see here the two types of fruits. We can see true fruits and false fruit or pseudo fruits. Basically, an original flower and ovary develops or mature in a form of fruit after fertilization. फ्रूट जिसमें ओवरी डेवलप्ड हो रही है, रिपेंड हो रही है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो बेसिकली यदि ओवरी 100% कंट्रीब्यूट कर दी टू मेक एनी फ्रूट, such kind of fruit called true fruits. If other parts of the flower are also contributing to form a fruit with the ovary, such kind of fruit, and this types of fruits called false fruit, right? So only ovary contributes to form the fruits. वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, विथ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इट्स डजंट मैटर. Only ovary contributes to form the fruits. Example, mango. In false fruit, other parts of the flower के कौन कौन से parts होते हैं, they may be contribute in the formation of fruits here, like calyx, corolla, stigma, style, thalamus, वो पार्ट पिट्यूल का जो उसको कैरी करता है. Other parts of the flower with ovary contribute in fruit formation. These types of fruits called pseudo fruits. Example, apple, peach and pear. Because ovary plus thalamus is another part of flower that contribute to make a fruits, except of ovary also. That's ovary and thalamus, both of are contributing from the fruit को बनाने में help कर रहे हैं, right? And a structure of fruit. A fruit is covered with a membrane or skin that's called pericarp. Basically, pericarp is the wall of ovary before the fertilization. The wall of ovary after fertilization converts in a form of pericarp that's called fruit skin. Fruit wall भी कह सकते हैं, pericarp. Pericarp may be divided in a different three portions. Three portions में divide किया जा सकता है. Number 1, epicarp. Number 2,
mesocarp, number 3 endocarp. एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं. एपिकार्प इन मैंगो, मैंगो की बात कर रहे हैं अपन. एग्जाम्पल मैंगो लें अपन, तो मैंगो के अंदर एपिकार्प होता है येलो और ग्रीन कलर, स्किनी पोर्शन. मेसोकार्प इन अ पल्प ऑफ द मैंगो, एंड एंडोकार्प इट इज हेरी स्ट्रक्चर जो गुठली पे होता है, सीड ऑफ फ्रूट, seed of mango. That is the endocarp. So edible part, which is the edible part of the mango here? Mesocarp. Mesocarp is a pulpy, जिसका हम जनरली पल्प जूस बनाते हैं. That's it. उसी तरह से हम बात करें टोमेटो. टोमेटो का स्किन जो बाहर से एक प्लास्टिक जैसा उतरता है, दैट्स एपिकार्प. मेसोकार्प फ्लैशी होता है, जूसी होता है, एंड एंडोकार्प बेसिकली भी जूसी होता है. यानी कि यहां पर एपिकार्प तो एक स्किनी पॉलीथीन जैसा स्ट्रक्चर है, और मेसोकार्प एंडोकार्प दे कन्वर्टेड एज द फॉर्म ऑफ फ्लैशी, जिसको हम सलाद के तरह सलाद की फॉर्म में खाते हैं. दैट इज द फ्रूट पार्ट्स, राइट. यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ड्रूप. व्हाट इज ड्रूप? ड्रूप, the fruit of mango called drupe. Fruit of mango and coconut. The fruit of the types of fruit which is present in a mango and coconuts called drupe. Why they are called so? Ovary कैसी हो? मोनोकार्पलरी. ओवरी कैसी हो? सुपीरियर ओवरी. और उसमें क्या हो? सिंगल ओव्यूल. ऐसी ओवरी यदि फ्रूट बना रही है, सच काइंड ऑफ फ्रूट कॉल्ड ड्रूप. सच काइंड ऑफ फ्रूट कॉल्ड ड्रूप. और उसका जो इडिबल पार्ट होता है, जिसको हम खाते हैं, इडिबल पार्ट, दैट इडिबल पार्ट, एग्जांपल इन मैंगो, मेसोकार्प खाते हैं. तो कोकोनट की बात करें, इडिबल पार्ट इन कोकोनट, हम खाते हैं लिक्विड एंडोस्पर्म, जो ड्राई होने के बाद में स्किन बन जाता है, राइट. कोकोनट में देखिए ग्रीन कलर का जो टेंडर कोकोनट होता है, उसमें ग्रीन कलर की कवरिंग होती है, दैट्स कॉल्ड एपिकार्प. ड्राई होने के बाद वो हेरी हो जाता है, और वो हेरी बना होता है सुबेरिन फिलामेंट्स का, लिग्निन फिलामेंट्स का, दैट बिकॉज ऑफ मेसोकार्प. एंडोकार्प आपने देखा होगा, कोकोनट के ऊपर बिल्कुल हार्ड शेल्ड जैसा, स्टोन जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, दैट्स कॉल्ड इंडोकार्प. दैट इज लाइक अ खप्पर, जिसको हम खप्पर बोलते हैं, एंडोकार्प. इसको जब तोड़ते हैं तो अंदर की तरफ सीड वाला मटेरियल निकलता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, दैट्स कॉल्ड एंडोकार्प. एंड एंडोकार्प ड्राई होने के बाद में क्या बन जाता है? उसका फ्लैशी स्किन पोर्शन, जिसको हम पाउडर बना करके खा सकते हैं, दैट इज द राइट. टेक ए स्क्रीनशॉट. एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? प्लीज आस्क. इज एनीबडी हैव एनी काइंड ऑफ डाउट? प्लीज आस्क. बोलिए. एप्पल के अंदर एडिबल पोर्शन होता है उसका थैलेमस, फ्लैशी थैलेमस. दिस इज द एडिबल पार्ट. ओवरी वाले पोर्शन को तो निकाल के बाहर फेंक देते हैं. एडिबल पार्ट इज थैलेमस. थैलेमस इज एडिबल पार्ट ऑफ दी व्हाट? एप्पल. एप्पल का एडिबल पार्ट थैलेमस होता है. इवन आल्सो pear. Pear or peach may be the same thing. Pear and peach also having the same thing. Please. Okay.
हम उसकी ओवरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फ्रूट की ओवरी को? कैन वी आइडेंटिफाई द ओवरी पोर्शन? ओवरी पोर्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी फ्रूट में? हाँ, तो जब ओवरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो पर्टिकुलर फ्रूट का पार्ट जो इडिबल है, यदि वो ओवरी वाला पोर्शन है, दैट काइंड द पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रियल फ्रूट्स। यदि ओवरी के अलावा वाला पार्ट यदि हम खा रहे हैं, लाइक ओवरी में हम बात करें एप्पल, एप्पल में क्या होता है, एप्पल के अंदर है वो पेरिगैनस। आपको मालूम है पेरिगैनस का फ्लावर का क्या टाइप होता है? थैलेमस पूरी तरह से ओवरी को 3 टाइम्स से 3 साइड से सराउंड करता है। जब 3 साइड से सराउंड करेगा तो ओवरी का पोर्शन इतना सा रह जाता है, बाकी का जो उसको सराउंड करा दैट कॉल्ड थैलेमस। इस तरह से यदि थैलेमस वाला पोर्शन बहुत ज्यादा फ्लैशी और एडिबल है, दैट काइंड ऑफ द पर्टिकुलर फ्रूट विल बी फॉल्स फ्रूट, उसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ठीक है, और आएंगी चीजें, अभी ये अभी इनकम्प्लीट नॉलेज है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक, सीड। सीड जैसे ओवरी मिच्योर, राइप होने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद, कई ओवरीज में ये जो मिच्योरेशन है, ये राइप होने का जो फिनोमेनन है, वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। कईयों में बिना फर्टिलाइजेशन के ही होता है। जब बिना फर्टिलाइजेशन के आर्टिफिशियली यदि किसी भी ओवरी को या किसी भी पर्टिकुलर फ्लावर पार्ट को हम आर्टिफिशियली फ्रूट में कन्वर्ट कर दें बाय स्प्रेडिंग द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केमिकल्स लाइक ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, 10th क्लास में अपने पढ़ा है, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन का स्प्रे करके किसी भी फ्लावर को, पर्टिकुलर सब में स्टैमिना नहीं होता, किसी भी फ्लावर को ओवरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। There will be no need of the fertilization there to form the fruit from the ovary. So such kind of the fruit which can be developed from ovary without any fertilization, that kind of the process, such kind of the fruit called that called parthenocarp, and this process called parthenogenesis. Next topic. हम फ्रूट की बात कर रहे हैं तो हम पार्थेनोजेनेसिस की बात नहीं करेंगे, हम करेंगे पार्थेनोकार्पोजेनेसिस। कार्पोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है उसके फर्टिलाइजेशन के बगैर। एग्जाम्पल, as we know, banana. That is it. Next topic is seed. What is seed? Mature and ripen. Mature and ripen ovule contributes to form seed. Seed. ओव्यूल की बात करें, दिस इज ओवरी in which a placenta, this is ovary, this is placenta, connection between the ovule and ovary, that called placenta, further development and nutrition. This is ovule, so ovary is made up of ovule. Maturation होता है, मैच्योरिटी आती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ओव्यूल विल कन्वर्ट इन सीड, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल में ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हम पहले बात करें? एग्जैक्टली ओव्यूल लुक लाइक दिस, this is the portion
This is the portion of embryo. Like now 2 and 1. This is the layers of ovule called integuments. 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 Here is a nucleus that called secondary nucleus. Here is a nucleus called egg cell or ova. ठीक है. अब हम बात करें सीड में ऐसा क्या क्या बन रहा है. सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या बनाएगा. इंटेग्यूमेंट्स विल बी व्हाट दे आर परफॉर्मिंग फॉर egg and ova. So secondary nucleus convert in a endosperm. Furtherly, endosperm is stored in a cotyledon. जैसे दाल के अंदर 2 कोटिलेडन्स होते हैं, कॉर्न के अंदर 1 कोटिलेडन्स. इंटेग्यूमेंट्स फॉर्म करता है सीड कोट को. सीड कोट. सीड कोट में 2 होते हैं, दोनों कवरिंग करने का काम करे. चने की दाल के ऊपर या चने के ऊपर है वो एक स्किन चढ़ी रहती है, उसी तरह से सभी सीड्स पर स्किन चढ़ी होती है. सीड कोट. एग एंड ओवा विल परफॉर्म टू फॉर्मेशन इन एम्ब्रियो. पहले तो वो जायगोट बनाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद, और आगे बनाएंगे वो एम्ब्रियो. एम्ब्रियो. ठीक है. एक चीज और, यहां पर देखिए एक छेद है. दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. This is the pore of ovule. This is the pore of ovule. After conversion, during the seed formation, the microbe will convert in germ pore or seed pore. Seed pore वो जगह है जहां से सीड का एम्ब्रियो जब तक उसको स्टोर किया जाता है तब तक वो रेस्पिरेशन करता है. Like this. We can see the diagram of the particular types of seed. यहां तक कवर कीजिए, आगे बढ़े अपन. Have any kind of doubts? Please ask. Anybody have any kind of doubt? Please ask. हाँ, ये क्या तरीका है यार बात करने का. हैं, गांव में बैठे हो, गवर्नमेंट स्कूल में हो, हैं, have some manners. अरे क्या होता है. नेक्स्ट टाइम पूछ. हाँ. नहीं, उससे कोई फर्क नहीं रहता. उसके अंदर सब में वाइबिलिटी होती है. दे हैव एम्ब्रियो, दे कैन परफॉर्म द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट आफ्टर जर्मिनेशन. दे हैव, यदि छोटा सीड होगा तो उसके अंदर एम्ब्रियो तो होगा ही ना, उसके डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन के लिए कम न्यूट्रिशन चाहिए, इसलिए वो छोटा है. बट दे हैव इवन दे हैव स्ट्रॉन्ग मिच्योर एम्ब्रियो. वो मिच्योर एम्ब्रियो भी है उसमें. दे डजंट मैटर. ओके, नेक्स्ट आ जाए. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीड अकॉर्डिंग द कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स कितने हैं? बिकॉज द कॉटिलेडन्स इज द पार्ट ऑफ सीड वेयर फूड स्टोर्स. व्हाट फॉर दे आर स्टोरिंग देयर फूड्स? फॉर the coming development or further development of the embryo during the gamete, during the seed germination. seed germination में embryo को क्या चाहिए? फूड चाहिए. कहां से लेगा? सीड से. कौन से पोर्शन से लेगा? कॉटिलेडन से. कॉटिलेडन में कहां से आएगा? एंडोस्पर्म से. सो एंडोस्पर्म इज ए स्टोर पार्ट ऑफ द nutritional elements which is performed to provide a nutrition or development to the developing embryo during the seed germination. Types of seed. Types of seed. There are 2 types of seed. Monocot seed and dicot seed. Dicot seeds. Example, monocot seeds, corn seed, rice, wheat. Example, dicots, gram, mango, pulses, जिसमें दालें कह सकते हैं. पी भी इसी में आ गया. राइट. डायग्राम देख लेते हैं अपन. दिस इज डायग्राम ऑफ कॉर्न.
single cotyledons present in this seed. There is partition between the cotyledons and the embryo. So this is the portion called one cotyledon, and this one cotyledon also known as, मोनोकॉट्स में इस cotyledon को कहा जाता है scutellum. The seed is covered with a tight membrane that called alurene membrane. Alurene layer, which is made up of protein से मिलके बना होता. This is the portion. We can say the particular here to here. This is embryo axis. इस embryo axis में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इस तरह से flaps होते हैं, coverings होती हैं. That is the portion. This is the portion called plumule. This is the portion lower, जहां से root rise होती है. That's called radicle. Right? The covering on plumule पर प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग होगी. That called coleoptile, and the covering on the radicle called coleorhiza. ये कवरिंग है. यहां से लेके यहां तक का पूरा एक्सिस. दिस इज द एक्सिस in a seed, that called embryonic axis. This is diagram of cone seed. Cone seed का डायग्राम हो गया. ठीक है. इस एल्यूरेन में कोटिलेडन्स के अंदर क्या स्टोर रहता है? एंडोस्पर्म. That is the portion where endosperm stores the nutrition elements or nutrition components or substances are stored to provide the nutrition for the developing embryo during their germination of seed. Next, इसका एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं ग्राम सीड का. ग्राम सीड लुक लाइक दिस. लुक लाइक दिस. कलर गलत यूज कर लिया है, ग्रीन नहीं होता, ब्लैक कलर. Like this, a pore, that's called seed pore, also called germ pore, where from the seed can an embryo can respiration कर सकता है. इसको यदि कवरिंग को हटाया जाए, this is the marginal point. This is the marginal point, that's called hilum. Hilum, hilum. इसका डायग्राम ब्रोड कर लें अपन. कवरिंग उतार दें तो कवरिंग उतारने के बाद ऐसे नजर आता है. लाइक दिस. दिस द पोर्शन बिलो द. ठीक है. अंदर की तरफ जो पल्सेस फॉर्म नजर आती है, दैट्स लाइक लुक लाइक दिस. This is called seed coat. The skin on the seed, that called seed coat. This is called cotyledon. This is called cotyledons. Two cotyledons we can say here. Two cotyledons, 1 and 2. Two cotyledons. That's why they are dicota. Here we can say the one cotyledon, only one cotyledon. That's why it is the corn seeds are monocote seeds. Right? उसके बाद बात करें अपन को ग्रीन कलर का बना रहे हैं. This is the portion of embryo, the lower portion and the upper portion. This is called plumule. This is called plumule. This is called plumule. This is called radicle. Right? एंड पूरा को पूरा यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है, दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियो एक्सिस.
right? According the numbers of cotyledons present in a seed, this and such kind of the particular seeds are monocot seeds and dicot seeds. According to the amount of endosperm which is present in a mature seed में एंडोस्पर्म है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग भी सीड के टाइप्स बताएं. तो टाइप्स ऑफ सीड आर 2 टाइप्स. यहां तक क्लियर कीजिए प्लीज. हरी अप, गो फास्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज इमीडिएटली, गो फास्ट. इज दैट क्लियर? यस. Next, types of seed on the basis of presence of endosperm which is present in a mature seed or not. वो mature seed में है या नहीं है endosperm, उसके अकॉर्डिंग यदि सीड की वैरायटी टाइप्स यदि हम बताते हैं तो there are 2 types of seeds. Mature seed endosperm absent, mature seed endosperm present. There are the 2 types of different. There are different 2 types of seed we can say on the basis of presence of endosperm in a mature seed. Types of seed are 2 types. पहले कोटिलेडन्स के बिहाफ पे बताया था, अब बेसिस बताएं. एंडोस्पर्म present or absent in mature seed. मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप के हो गए. एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस. एल्बुमिनस सीड, और इसका दूसरा नाम भी है एंडोस्पोरिक. And another name of the non-albuminous is the non-endosporic. Endosporic. Mention here, notice please. Albumins, endo means what is here? Endosperm present in mature seed. Endosperm present in mature seed, but during the development, if seed and their embryo totally consume their endosperm, so no amount and the amount of endosperm totally consumed during the embryo development, तो mature seed के अंदर endosperm absent हो जाएगा. That's endosperm absent in mature seed. Mature seed में एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है. एग्जाम्पल, these are the types of monocot seeds. All most of monocot seed इसमें हो जाएगा. So राइस, कॉर्न, rice, corn, these are 2 examples, and examples are here dicot seeds. So gram, mango seed, pea. These are the examples of such kind of seeds. Take a screenshot please immediately, go fast. किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट? एनी डाउट? हैव एनीबडी एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? डाउट आने चाहिए. आगे बढ़े. मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हेडिंग डालें अपनी कॉपी के अंदर, सभी कॉपी लेके बैठेंगे. अभी डायग्राम्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप साथ के साथ बनाएंगे बेटा. डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट. अब हमने इनफ्लोरोसेंस के सारे डेटा कलेक्ट कर लिए हैं. नाउ दिस इज द टाइम टू कलेक्ट द ऑल डेटा इन वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज. साइंटिफिक लैंग्वेज में उन डेटा को कलेक्ट करने का टाइम आ गया है. हमने ब्रैक्ट बताया, इब्रैक्ट बताया,
unisexual flower, bisexual flower, superior ovary, inferior ovary, valvate, imbricate, the particular types of seed, placentation, हम ये सब बताया. इनको हम एक पर्टिकुलर काउंटर टॉपिक में कलेक्ट करेंगे. दैट विल बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर. नेक्स्ट टॉपिक, description of typical flowering plants. Typical means जो सब में कॉमन रहता है. फ्लावरिंग प्लांट्स, टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट्स. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. हमें मेंशन करनी पड़ती है साइंटिफिक लैंग्वेज. साइंटिफिक जो लैंग्वेज है वो मेंशन करनी पड़ती है. साइंटिफिक लैंग्वेज, राइट. क्या क्या मेंशन करें साइंटिफिक लैंग्वेज में? पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. इस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वी आर इंडिकेटिंग हियर स्टेम, रूट, लीव्स, एक्सेट्रा. स्टार पॉइंट लगा रहा हूं यहां पे. मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है. नेक्स्ट, बी पोर्शन, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. व्हाट इज हियर? हम पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के अंदर है वो क्या मेंशन कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में मेंशन कर रहे हैं बाइसेक्सुअल सेक्सुअलिटी, सुपीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी, complete flower, incomplete flower, seed, types of placenta. These are the all particular details. These are the parts of flower. C, floral formula, and D, floral diagram. Floral formula and floral diagram. इस तरह से हम जो दे रहे हैं वो 2 पॉइंट्स तो हम क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि हमारे जितने भी डेटा आए वो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम, सुपीरियर, इंफीरियर, एस्टिवेशंस, द टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन, देयर डायग्राम्स, वी ऑलरेडी हैव अ क्लियर. नाउ कम टू द सीटॉय, floral formulas. In floral formulas we have to mention some details in a scientific language. Number 1, BR, EBR. Number 1, Bract. Bract present, BR. Bract absent, EBR. Second number, सेक्स इन अ फ्लावर. फ्लावर में कौन सा जेंडर है? मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल. सच काइंड ऑफ फ्लावर कॉल स्टैमिनेट. दिस इज कॉल्ड पिस्टिलेट फ्लावर एंड दैट्स कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर. Next, symmetry. Actinomorphic. Actinomorphic means radial symmetry. Zygomorphic means bilateral symmetry. Fourth number, position of the ovary. Position of the ovary like this, superior ovary. Like this, inferior ovary. Like this, semi superior ovary.
हम यहां पर टाइप्स ऑफ फ्लावर को भी मेंशन कर सकते हैं, फ्लावर का टाइप। सुपीरियर ओवरी मीन्स हाइपोगाइनस फ्लावर, सारे के सारे रोल्स नीचे से होंगे। इंफीरियर ओवरी मीन्स सारे के सारे जितने भी रोल्स हैं वो ऊपर से होंगे, यानी कि एपिगाइनस फ्लावर। और यहां पर कप शेप्ड थैलेमस होने पर सुपीरियर ओवरी इन सेमी सुपीरियर नॉट इंफीरियर नॉट सुपीरियर, दैट कंडीशन विल बी पेरिगाइनस। Some technical terms are also mentioned. What? एक फ्लोरल फॉर्मूला मैं इंडिकेट कर रहा हूं आपके सामने, एक लिटरली ऐसा ही एग्जांपल दिया मैंने फ्लोरल फॉर्मूला का। Br ब्रैकेट मौजूद है, दिस इज बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक पहले आता बच्चा, सिमेट्री को पहले शो किया जाता है, मैं अभी सीक्वल बता दूंगा। बाइसेक्सुअल, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। इन सभी अल्फाबेट्स के नीचे की साइड में यदि कोई नंबर शो किया जाता है तो वो उन अपेंडेजेस का नंबर होता है। लाइक दिस, स्टार पॉइंट मेंशन करेंगे, नंबर of with the above letter indicate the number of appendages of respective number of appendages in the respective flower, like this। कैसे? सपोज के शो कर रहे हैं 5, so 5 number is showing here, the letter is K means calyx, calyx के नीचे 5 मेंशन कर रहे हैं, तो 5 appendages are present, 5 appendages are present in calyx, means 5 sepals are present in calyx। कोरोला के नीचे 5 petals are present in corolla। एंड्रोशियम के नीचे 5 stamens are present in एंड्रोशियम। गाइनोशियम के नीचे 2 में इंडिकेट कर दिया, 2 कार्प या 2 पिस्टिल, मतलब 2 पिस्टिल, इन एक ओवरी के 2 सेक्शन हो गए, 2 पिस्टिल्स आर प्रेजेंट, लाइक दिस। गैमो मीन्स जॉइंटेड, कैसे फॉर्म शो किया जाता है यहां पर मेंशन कर रहा हूं। यदि हमने इनको सबको ब्रैकेट में बंद कर दिया लाइक दिस, दैट कंडीशन कॉल्ड कोहेजन। तो यहां पर मेंशन कर लेंगे स्टार पॉइंट, कोहेजन, और दूसरा स्टार पॉइंट एडेशन। कोहेजन, the jointed portion between one appendages, एक appendages के सारे कैंडिडेट मिलकर के जॉइंट बना रहे हैं, that is cohesion। ये cohesion शो किया मैंने। addiction, the joint between two different appendages like एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंड्रोशियम और कार्पल आपस में जुड़े हो या ये गाइनोशियम और एडेशन जुड़े हो तो इसे एडेशन पोर्शन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें यहां पर, कोहेजन मीन्स फ्यूजन और जॉइंट बिटवीन द appendages of the same role। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यहां पर, K5 this, C5 this, A5 this, गाइनोशियम 5 to this। ये हम एडिशन शो कर रहे हैं लाइक दिस, these are showing here cohesion, sorry, cohesion शो कर रहा है।
Addiction, the fusion or joint between the appendages, fusion joint between the appendages of different two roles. Here fusion or joint between appendages of two roles. कैसे? Like this. Endosperms are fused with corolla. तो हम यहां पर endosperms are fused with corolla. वापस से ले लेते हैं यहां पर कैलिक्स, corolla, androecium and gynoecium. So androecium is fused with corolla. इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को बोलेंगे epipetalous. Epipetalous because androecium are fused with petals here. So example will be here epipetalous. Epipetalous. और यहां पर कॉइजन की बात करें, इस कॉइजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? गैमोसेफेलस. इस कॉइजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? गैमोपेटलस. इस कॉइजन की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? मोनो अडाल्फस. और इस कॉइजन की जी के अंदर कॉइजन की बात करेंगे तो लिखेंगे सिनकार्प. ठीक है. तो एडक्शन ऑन कॉइजन विल बी टू टाइप्स. यहां तक किसी का डाउट है? प्लीज आस्क. यू आर ओपन टू आस्क. यू आर वेलकम टू आस्क. मोस्ट वेलकम. The description of typical flowers, plant scientific language, parts of plants, parts of flower, but in a flower formula we are mentioning here the different description in a particular symbols form. Bract, BR, EBR absent. Sex in flower, male staminate, female pestillate, bisexual flower. Symmetry, actinomorphic, zygomorphic, like this. फटाफट से चलते हैं लास्ट पॉइंट पर, 2 मिनट के अंदर कवर कर देते हैं उसको. नेक्स्ट है फ्लोरल diagram. Floral diagram. We have to put these all symbols and diagrams. We have to put the all symbols and details in a very symbolic or signature form. That is the form called the collection of such kind of the all informations in a symbolic language. That's called floral diagram. So what is floral diagram? फ्लोरल डायग्राम. जितने भी डिटेल्स दे रहे हैं उनका सिंबल्स यूज किया अपन ने, और उस सिंबल्स का हम क्या बना रहे हैं? डायग्राम्स बना रहे हैं. दैट्स कॉल्ड फ्लोरल डायग्राम. लाइक दिस. दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फ्लावर एंड दिस इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ द फ्लावर. अच्छे से याद रखना. एंटीरियर सरफेस पे बनाया जाता है इस तरह का. ये क्या है? ब्रैक्ट है. यदि है तो बना देंगे, नहीं है तो नहीं बनाएंगे. सो पोस्टीरियर सरफेस पे होता है मदर एक्सिस. तो इस तरह से डॉट बना जाते हैं मदर एक्सिस. अब इनके रोल्स बनाते हैं. सबसे पहला सर्कल, इस सबसे पहले सर्कल को इस तरह से ब्रेक कर देंगे. 1 2 3 4 इस तरह से. तो ये सपोज कीजिए आपने 4 टेट्रामेरस वाली पोजीशन आ गई है. 1 2 and 3 4. तो इस तरह से हम बनाएंगे. फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज थर्ड नंबर, दिस इज फोर्थ नंबर. 1 पोस्टीरियर सरफेस पे, 1 एंटीरियर सरफेस पे. 2 अपेंडेजेस हैं वो लेटरल सरफेस में. दीज आर कैलिक्स बने होते हैं सेपल्स.
कितने हैं? 4 है, सबके सब फ्री है। कौन सा फॉर्म है? वेलवेट। अब हम बात करें नेक्स्ट वाला रोल की, सेकंड रोल, दैट इज सेकंड रोल इज कोरोला। कोरोला को इस तरह से बनाया जाता है, लाइक दिस, चांद की तरह, लाइक मून। दिस इज कोरोला या पेटल्स, को पेटल से मेंशन किया जाता है। उसके बाद बनाया जाता है एंड्रोशियम सर्कल। एंड्रोशियम के अंदर बायलॉब्स भी एंड्रोशियम हो सकते हैं, यहां पर 4 ही बताया मैंने, तो ये हो गया एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम आर मेड अप ऑफ स्टैमेंस। हाउ मच स्टैमेंस वी कैन सी हियर? 4 स्टैमेंस। एंड लास्ट, सबसे अंदर वाला, दैट कॉल गायनोशियम, दैट इज गायनोशियम। गायनोशियम, और गायनोशियम को मेंशन किया जाता है ओवरी से। ओवरी के चैम्बर्स होते हैं, सपोज कीजिए ओवरी के यहां पर इस तरह से एक एक्सिस बना हुआ है और इस एक्सिस पर क्या लगे हुए हैं? सारे के सारे ओवल्स लगे, तो एक्सियल फिलामेंट्स हो गया, एक्सियल प्लासेंटेशन हो गया। मैं इसका यदि फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनाऊं? फ्लोरल फॉर्मूला, देखिए फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर मदर एक्सिस मैंने बना दिया, देन आपका एक्टिनोमॉर्फिक है, बाइसेक्सुअल है, कैलिक्स कितने हैं? 4 हैं, सारे के सारे फ्री हैं। कोरोला 4 हैं, सारे के सारे फ्री हैं। एंड्रोशियम 4 है, सारे के सारे फ्री हैं। गायनोशियम 1 है और ओवरी सुपीरियर है। ये सुपीरियर वाला फॉर्मूला यहां पर काम नहीं करेगा। दैट्स लाइक वी कैन फ्लोरल डायग्राम।